Hello to all, welcome back in next lecture of Geography Practical. And in the last lecture, we had talked about diagonal scale, and today we are going to talk about time scale. So let's start with time scale. अब हम आपको आज के लेक्चर में समय मापने के बारे में करते हैं। समय मापने, सबसे पहले समय मापने की बात करें तो हमें कुछ बातें इसमें ध्यान में रखने की है कि समय मापने में रेखीय विधि के द्वारा दूरी एवं समय को एक निश्चित निरूपक भिन्न का एक तरीका है निरूपक भिन्न को प्रदर्शित करने का, जिसमें हम प्रश्न के अनुसार दो विभिन्न इकाइयों को, इसमें दो विभिन्न इकाइयां कैसे, समय और दूरी को हम प्रदर्शित कर सकते हैं एक साथ ही। और फिर मापनी जो बनाते हैं हम इसमें, उसमें जो नीचे की ओर हम दूरी को प्रदर्शित करते हैं समय मापनी में, और जो ऊपर रेखी मापनी होती है उसमें हम समय को प्रदर्शित करते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें प्रश्न दिया हुआ है कंस्ट्रक्ट टाइम स्केल फॉर एन ऑटो that runs at a speed of 50 kilometers per hour. The distance of 50 kilometers is depicted on map by 1 centimeter. Find the RF and depict the distance of distance covered by auto in 7 hours. So to start with, we start with writing down the formula, and that is of scale. So we first of all I wrote down the formula of scale, and that is the distance between those 2 points on the map upon the distance between any 2 points on the ground. And then 1 centimeter on the map is represented by 50 kilometers on the ground. As there are 1 lakh centimeters in 1 kilometer, so 50 into 1 lakh, that is equal to 50 lakh centimeters. Now why we did it? Because we know the rule that in a fraction, the numerator and the denominator, they are of the same unit. That is, if the distance is depicted in centimeters in the denominator, then in the denominator also the distance has to be depicted in centimeters. So first work of ours is to convert the different units into the same unit. That is the unit which represent the distance on the map. We have to convert the ground unit into the unit in which we are going to depict the distance on map. So as there are 1 lakh centimeters in 1 kilometer, so 50 into 1 lakh, that is equal to 50 lakh centimeter. Now we have got the RF of the given problem, and that is 1:50 lakh. When 1 centimeter of map represents 50 kilometers, now this is given here, that is 50 kilometers. So 1 centimeter on map represents 50 kilometers distance on ground. If we draw a line of 15 centimeters, it will represent 15 into 50, that is equal to 750 kilometers on ground. So here we have got that if we are going to draw a line, now it is like a plane scale till here. What we have done is like a plane scale. There is no difference between the plane scale and this. Okay. Now to start with the different, this is the second step which will help us to depict and to do the sum as a time scale. And so to start with, we start with the calculation for time. Now here, as per the sum, the distance which the auto covers in 50 kilometers is the time which the auto takes to cover 50 kilometers is 1 hour. That is an hour. So here we wrote 50 kilometers distance auto driver covers in an hour. 1 kilometer distance he will cover in 1 upon 50 hours. And now how much is the distance? The total distance is 750 kilometers. So 750 kilometers auto driver will cover in 1 upon 50 into 750, that is 15 hours. So now we have got the solution that if the auto person, he is covering a distance of 750 kilometers, he is going to take 15 hours to cover this distance. Now we will do this in दिव्य। आपने देखा यहाँ प्रश्न दिया हुआ है आपको। प्रश्न क्या है कि एक समय मापने की रचना कीजिए जिसमें एक ऑटो चालक जो है यह 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ऑटो चला रहा है, और यह 50 किलोमीटर की जो दूरी है यह मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। तो सर्वप्रथम हमें इसमें निरूपक भिन्न ज्ञात करना है,
और आप ऑटो चालक द्वारा 7 घंटे में तय की जाने वाली दूरी हमें जो है वो समय मापनी बनाकर उसमें प्रदर्शित करनी है। तो हमने सर्वप्रथम कार्य क्या किया कि हमने मापनी का सूत्र लिखा और वह क्या है, मानचित्र पर उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी और धरातल पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अब यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पे 50 किलोमीटर दिया हुआ है, 50 किलोमीटर, और वो 1 सेंटीमीटर 50। ध्यान में रखना है कि हमें इसके आगे लिख देना है कि मानचित्र पर ये दूरी कितनी है, 1 सेंटीमीटर की है, और धरातल पर ये दूरी कितनी है, 50 किलोमीटर की है। अब हम इसको हल करना शुरू करते हैं और हमें ये नियम ध्यान में रखना है कि अंश और हर दोनों 1 इकाई के होने चाहिए। तो हम शुरू करते हैं। मानचित्र का 1 सेंटीमीटर धरातल के 50 किलोमीटर की दूरी को प्रदर्शित करता है। क्योंकि 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं, तो 50 किलोमीटर कितने सेंटीमीटर को प्रदर्शित करेगा, 50 गुणा 1 लाख, तो ये हो गया 50 लाख सेंटीमीटर की दूरी को प्रदर्शित करेगा। तो हमारे पास निरूपक भिन्न कितना आया, 1/50 लाख। तो ये सबसे पहला हमारा काम हो गया। यहाँ पे लिखा निरूपक भिन्न ज्ञात कीजिए, तो हमने सबसे पहला काम किया, हमने ज्ञात कर लिया निरूपक भिन्न, और हमारा निरूपक भिन्न कितना है, 1/50 लाख। अब हमने यहाँ लिखा, दिए हुए प्रश्न के अनुसार मानचित्र का 1 सेंटीमीटर धरातल के 50 किलोमीटर की दूरी को प्रदर्शित करता है। अब हम नियम को भी फॉलो करना है हमें कि हमारे को रेखा कितनी लंबी खींचनी है, रेखीय मापनी को बनाना है हमें, तो 12 से 16 सेंटीमीटर के मध्य होनी चाहिए। तो यहाँ मैंने 15 सेंटीमीटर लिया। अब 12 ले लेते तो भी सही होता। आप कितना मतलब 12 से 16 के बीच में आप कितना भी लेते वो सारे आपके सही थे। तो 15 सेंटीमीटर लंबी रेखा अगर आप खींचेंगे तो वह 15 गुणा 50 बराबर हो 750 किलोमीटर की दूरी प्रदर्शित करती है। अब ये हमारा पहला स्टेप हुआ, है ना। अब हम पहला स्टेप क्या हुआ, RF फाइंड आउट कर लिया, निरूपक भिन्न हमने ज्ञात कर लिया। दूसरा हमने यह ज्ञात कर लिया कि कितने किलोमीटर की दूरी वह 15 सेंटीमीटर लंबी रेखा प्रदर्शित करेगी। तो ये एक सरल मापनी, बिल्कुल सरल मापनी की तरह हमने इसको किया। अब अंतर कहाँ आता है, जब हम समय को की भी गणना करते हैं। तो यहाँ हमने शुरू किया कि 50 किलोमीटर की दूरी जो है वह जो ऑटो चालक है वो 1 घंटे में तय करता है। तो 1 किलोमीटर की दूरी वह तय करेगा 1/50 में, और दिए हुए प्रश्न के अनुसार 750 किलोमीटर की दूरी वह तय करेगा 1/50 इंटू 750 बराबर कितना हुआ, 15 घंटे में। अब इसको बनाना कैसे है, तो अब हमें ये क्लियर हो गया कि वो जो ऑटो चालक है वह 750 किलोमीटर की जो दूरी है जो हम 15 सेंटीमीटर रेखा के द्वारा प्रदर्शित करेंगे उसको वह 15 घंटे में तय करता। अब इसके लिए हमने स्केल लिया और स्केल की सेंटीमीटर वाली साइड ली, और इस स्केल की सहायता से हमने एक रेखा खींची और उस रेखा के हमने 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर 15 भाग कर दिए। फिर उसके बाद हमने उसके प्राथमिक विभाजन, जो हर समय आपको बोला है पहले वाला छोड़ के जो दूसरा होता है उसके नीचे हम शून्य लिखते हैं। फिर 1 2 3 4 5। अब हर विभाजन जो है मैंने आपको बताया था कि जो हम मापनी बनाते हैं, समय मापनी बनाते हैं, उसके निचले हिस्से में हम दूरी को प्रदर्शित करते हैं और ऊपरी हिस्से में हम समय को प्रदर्शित करते हैं। हम यहाँ 2 इकाइयां, विभिन्न इकाइयों को प्रदर्शित कर रहे हैं, ऊपर नीचे दूरी और ऊपर समय। तो यहाँ हमने 50-50 का जोड़ते गए, 50, 100, 150, 200 और 250। तो 5 के नीचे मैंने नंबर लिख दिया। मैंने पास पास इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इतनी स्पेस नहीं थी, इतनी जगह नहीं थी कि मैं सबको लिखूं और वो साफ नजर आए। तो इसलिए मैंने 5-5 की दूरी पे लिखा, और फिर मैंने ये 300 का हो गया, 350, 400, 450 और ये 500 का हो गया। फिर बचा कितने, 4 बचे, 1 2 3 4, मैंने यहाँ 700 लिख दिया। ठीक इसी प्रकार से 1 घंटे की दूरी क्योंकि वह 1 घंटे 50 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करा था तो मैंने ऊपर 1 लिख दिया। 2 घंटे में वह 100 किलोमीटर की दूरी तय करा था। 150 किलोमीटर की दूरी वो 3 घंटे में तय करा था। 4 घंटे में वो 200 किलोमीटर की दूरी तय करा था, और 250 किलोमीटर की दूरी वो 5 घंटे में तय कर रहा था। इसी प्रकार से मैंने यहाँ ऊपर जो है 14 घंटे प्रदर्शित कर दिए, और यहाँ पे ये मेरे प्राथमिक विभाजन बन गए, और यहाँ मैंने 0 से 1 सिंपल यहाँ है ना R लिख दिया, और नीचे यहाँ किलोमीटर 50 किलोमीटर की दूरी को वो प्रदर्शित कर रहा है। तो ये हमारा, अब हमें क्या प्रदर्शित करना था प्रश्न के अनुसार, अगर आप देखेंगे पीछे तो प्रश्न में दिया है कि ऑटो चालक द्वारा 7 घंटे में कितनी दूरी तय की जाती है वो हमें प्रदर्शित करना है। तो 7 यहाँ हो रहा है 0 से लेके 7,
तो मैंने 0 पे लम्ब डाल दिया और 7 के ऊपर लम्ब डाल दिया और यहाँ पे एक तीर खींच दिया इसको छूते हुए और यहाँ एक तीर खींच दिया और यहाँ बीच में मैंने लिख दिया कितने घंटे हो गए 7 में 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350। तो मैंने यहाँ लिख दिया 7 घंटे में वह 350 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब मैट्रिक टेबल का ही हम दूसरा प्रश्न, तो दूसरा प्रश्न है हमारा टाइम स्केल का कि कंस्ट्रक्ट अ टाइम स्केल फॉर अ रिक्शा दैट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर per hour and that distance of 1 kilometer is depicted on map by 4 centimeters. Find the RF, depict the time that rickshaw takes to cover a distance of 3 kilometers. Now to start with, we started this by writing down the formula, and the formula, as we all know, that is the distance between 2 points on the map upon the distance between any points on the ground. So here, as per the sum, what is the distance? It is 4 centimeters. So here we write 4 centimeters and here it is 1 kilometer, and below we write 1 kilometer. Just like this. It is 4 centimeters we write here and we write 1 kilometer. Now see, in denominator we have centimeter and in the denominator we have kilometer. So these two are different units. Now we have to bring these two units into same unit. So if this is centimeter, this has to be centimeter. So what comes first is the conversion. हमको सबसे पहले इसको convert करना है. To start with, 4 centimeters on the map is represented by 1 kilometers on the ground. So 1 centimeter will depict the distance of 1 lakh divided by 4. That is equal to 25,000 centimeters on the ground. So this turns out to be 4 as per, and here it is 1, 2, 3, 4 and 5. So if we cut it, this is 1 and here it is 25,000 after solving the sum. So we have got the RF and the RF is 1:25,000. And there are, as we know that there are 1 lakh centimeters, as there are 1 lakh centimeters in 1 kilometer. So 25,000 divided by 1 lakh, that is equal to 1 upon 4. Right? So therefore RF is equal to 1:25,000. Now then comes that 1 centimeter on map represents 0.25 distance on the ground. So if we draw a line of 16 centimeter, it will represent 16 into 0.25. That comes out to be 4 kilometers on the ground. So 1 kilometer distance rickshaw covers in 1 hour. 4 kilometers distance the rickshaw wala will cover in 1 into 4, that is 4 hours. So first we did the calculation to find out the RF, and till here the calculation is simply as if it is done for a simple plain scale, but the difference comes here when we start the calculation for time, and this makes it a time scale, the calculation for time. So now to start with, same thing I'm going to repeat in ये जो प्रश्न है, दूसरा प्रश्न इसमें दिया है कि एक रिक्शा चालक जो है 1 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करता है। 1 किलोमीटर की दूरी मानचित्र पर 4 सेंटीमीटर के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। निरूपक भिन्न ज्ञात कीजिए एवं रिक्शा द्वारा 3 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय की जाती है, समान मापने के द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो यहाँ आपने देखा, सबसे पहले हमने सूत्र लिखा और सूत्र पे लिखा मानचित्र पर उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी बटा धरातल पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अब इसको हम सबसे पहले दूसरी और मापने की तरह हल करेंगे, सरल मापने की तरह हल करेंगे, और इसमें हमने यही लिखा है कि मानचित्र पर जो 7 सेंटीमीटर है वह धरातल के 1 किलोमीटर की दूरी को प्रदर्शित करता है। क्योंकि 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं, अतः 1 किलोमीटर को हम 1 इंटू करके यहाँ 1 लाख सेंटीमीटर की दूरी को प्रदर्शित करता है। अब मानचित्र पर जो 1 सेंटीमीटर है वह धरातल पर 25,000 सेंटीमीटर की जो दूरी है उसको प्रदर्शित करता है।
तो 1 सेंटीमीटर धरातल पे 0.25 किलोमीटर की दूरी को प्रदर्शित करेगा। 16 सेंटीमीटर अगर हम लंबी रेखा खींचते हैं तो 16 गुणा 0.25 वो बराबर होकर 4 किलोमीटर की दूरी को प्रदर्शित करता है। अब यहाँ हमने सिंपल एक प्लेन स्केल सरल मापनी की तरह प्रश्न को हल किया। अंतर क्या आता है जब हम समय की गणना करते हैं। तो यहाँ हमने किया 1 किलोमीटर की दूरी रिक्शा वाला जो है वह 1 घंटे में तय करता है, तो 4 किलोमीटर की दूरी वह तय करेगा 1 गुणा 4, 4 घंटे में तय करता है। अब इसको बनाने के लिए हमने वही स्केल लिया और स्केल की सेंटीमीटर वाली साइड ली और 16 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींची और इसके 4 हिस्से किए। और तो यहाँ आप देखेंगे कि प्राथमिक विभाजन और गौण विभाजन किए हमने और यहाँ पे जो प्रथम विभाजन था उसके नीचे शून्य लिखा, ऊपर और नीचे दोनों इकाइयों के लिए शून्य लिख दिया। फिर प्रथम विभाजन नीचे तो दूरी को प्रदर्शित कर रहा है और ऊपर समय को प्रदर्शित कर रहा है। तो 1 घंटा वह 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है 1 घंटे में, 2 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करता है और 3 घंटे में वह 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। और यहाँ हमने उप विभाजन जो किए गौण विभाजन किए, उसमें हमने यहाँ मिनट ले लिए। 1 घंटे से छोटी इकाई क्या होती है? मिनट। और 1 किलोमीटर से छोटी इकाई क्या होती है? हेक्टोमीटर। तो जो 60 मिनट की दूरी वो जो है 60 मिनट में वह 10 हेक्टोमीटर की दूरी तय करता है। तो इसको मैंने आधा कर दिया, 5 और 10 और मिनट को भी आधा करेंगे तो 60 मिनट का आधा क्या होता है? 30 मिनट। तो इस तरह से हमने ये प्रश्न किया। अब हमें प्रश्न में क्या दिया हुआ था कि वो कितने घंटे की दूरी तय करता है। कितने घंटे, 3 घंटे में वह कितनी दूरी तय करता है। तो इस शून्य के ऊपर लंब लगाया और यहाँ 3 के ऊपर लंब लगाया और फिर मैंने यहाँ तीर लगाया, यहाँ लंब लगाया और यहाँ 3 के ऊपर लंब लगाया, यहाँ तीर लगाया, यहाँ तीर लगाया और मैंने देखा कि वो 3 घंटे में 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है और मैंने यहाँ 3 किलोमीटर लिख दिए। तो इस प्रकार से हम जो समय मापनी है उसको बनाते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में समय मापनी को ही डील करेंगे, पर इसमें हमने इस लेक्चर में आपको मैट्रिक टेबल के सम्स कराए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको ब्रिटिश टेबल के सम्स कराएंगे। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।